ये सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं, ये उन एहसासों की तलाश है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं खो गए थे। हर रास्ता कुछ नया सिखाएगा, हर मोड़ एक नई कहानी सुनाएगा और आज उस कहानी का पहला पन्ना खुलता है। So this is our bed, and then we have two trolleys, two, three duffels, and then we have a laptop bag, camera bag, we have side bags, we still have to pack these laptops, a lot of luggage now. So now we are loading our luggage into a 700. So we are now finally starting our journey. Let me just reset my trip. So my trip A is now set as 0. Will be the fuel. Let me put Omkareshwar. So it's showing us 14 hours 7 minutes now to the hotel, and it's around 700 kilometers, 730 kilometers we're gonna cover. And yes, she's ready, and now we will start our journey. So the reading we have on the odometer is 6,506. Most probably we will be covering around 5,000 in this whole trip. So let's start our journey. We have just started our trip to Rajasthan via Madhya Pradesh. So ये trip में we will be covering Omkareshwar, then we are going to Indore, Ujjain, फिर वहाँ से we will go to Jaipur, Khatu Shyam, then Jodhpur, Jaisalmer, then we will come back to Mount Abu, Udaipur, then back to Bhopal, and then back to Chhattisgarh to meet our parents, and then we will come back to Hyderabad. So it will be a very long journey. We will be covering around 5,000 plus kilometer in this trip in 11 to 12 days. And so today is the day one. We just left from Hyderabad, and we're gonna cover 750 kilometers to Omkareshwar, and let's see. So it's around 7:30. We are leaving Hyderabad. Most probably tomorrow morning 11 o'clock we will be reaching to Omkareshwar. फिर वहाँ से we will do the darshan, then we will explore Omkareshwar. फिर उसके बाद we are planning to stay in Omkareshwar, and then we will left for Indore and Ujjain, and let's see how it's going. So we have already set up our bed. So if you just show them, we have our whole bed set up already. So at the back end, if you see, everything is already set. We have a bed. हमने पूरा अपना bed, luggage सब setup किया हुआ है. So it's a 6 feet bed. We can easily sleep, and we get wherever we feel कि भाई हम थक गए हैं, we gonna sleep, and then we gonna continue our journey. So it's not that we gonna cover the whole stretch in one shot. कहीं पे if we feel कि भाई हम थक गए हैं, हम सो जाएंगे. तो हमारा पूरा बेड सेटअप है दोनों के लिए. वी हैव आवर लगेज in between adjusted. बाकी yes, let's see, let's hope for the best. Now we have just exited the outer ring road, और अभी ये मुंबई हाईवे है, मुंबई पुणे हाईवे. So we are taking this highway. We have a pista house here. अब यहाँ से we will go around 5-10 kilometers. फिर वहाँ से we will take नांदेड़ वाला हाईवे, and that highway is also good till we are in Telangana. फिर उसके बाद महाराष्ट्र में what I heard is road is not that great, but हाँ, let's see. We are going in this route first time, so पता नहीं रोड कितना अच्छा कैसा है. So अब हमने नांदेड़ हाईवे ले लिया है, and it's a very good road. Three lane one side. We're gonna use our ADAS. So अब ये automatically चलने वाला है. It's a toll road. It's a Nanded highway. So it's basically Hyderabad Indore economical corridor, and it will go till Indore Ujjain. So highway is very good.
till in Telangana. Post that when you enter in Maharashtra, road उतने अच्छे नहीं है. Nanded is around 218 kilometers from here. So we just crossed the first toll on this Nanded highway and we have this, क्या है ये? चाय चस्का. We are planning to have a tea break. So, चाय ट्राई करी जाए. ये कैसा है? अच्छा लगा तुमको? तो हमने जस्ट अभी चाय पी. फर्स्ट टी ब्रेक on Nanded highway and it was good. So the tea was good. मुझे तो अच्छी लगी, तुम्हें पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों. बट हमने अभी जस्ट 65 किलोमीटर्स कवर किया है घर से यहाँ तक. ये हमारा पहला ब्रेक था. नाउ वी आर प्लानिंग टू रीच नांदेड़ कैसे भी करके. उससे पहले वी विल ब्रेक. सो 700. लेट्स गो. लेट्स कवर एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स नाउ. वी विल नॉट टेक एनी रेस्ट. We just came around 100 kilometers and here I can see stars. Not sure if I'm able to capture it or not. You can see this is one of the stars. The roads are too good. So we are near to Nanded. Nanded is around 70 to 80 kilometers now and the road are too good. Suddenly तो नाइट मोड में चला गया. Actually the thing is we have seen a dormitory rest area. So government ने really infrastructure बहुत ही अच्छा डेवलप किया है ये रोड में, जहाँ पे ट्रक वाले रुक के डॉर्मेट्री की फैसिलिटी ले सकते हैं. एंड आई बिलीव दैट विल कॉस्ट अराउंड 200-300. उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से बाबा. और सही था वो, एकदम अच्छे तरीके से बनाया हुआ, मेंटेन किया हुआ और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. और यहाँ हर 2-3 किलोमीटर में यू हैव टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल. सो ये जो रूट है नांदेड़ तक का हैदराबाद से, ये सीरियसली टू गुड है. मैंने साउथ में देखे, साउथ में भी रोड्स अच्छे हैं बट दिस स्पेसिफिक रूट इज़ टू गुड. हियर ऑल्सो यू कैन सी ये वॉशरूम. ऐसे हर 2-3 किलोमीटर्स में यू हैव दिस पब्लिक टॉयलेट, वॉशरूम. और बहुत ही नीट एंड क्लीन मेंटेन किया हुआ है. और डॉर्मेट्रीज हैं ट्रक वालों के लिए रुकने के लिए. रेस्ट एरियाज हैं हर 10-15 किलोमीटर्स में. एंड सिग्नल्स, यू डू नॉट हैव एनी बम्पर और एनीथिंग, मीन्स ब्रेकर्स और ऑल. एकदम सॉर्टेड है ये रूट. बट अब पता नहीं नांदेड़ के आगे क्या होने वाला है. So we have Akola 309, Nanded 97 kilometers. See, again we have a public toilet. So हर 2-3 किलोमीटर्स में public toilets है. and साईं बाबा का गेट क्यों भाई? जहाँ तो हम लोग गुरुद्वारे रहे हैं शायद. 6 मिनट. So we just reached Nanded. Too big बाबा. तो गोल्डन टेम्पल जैसा ही है, बहुत बड़ा है नहीं? We enjoyed. हमने दर्शन किए. We had लंगर. So हमने अभी रात के कितने बज रहे? अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हमने अभी लंगर खाया यहाँ पे नांदेड़ गुरुद्वारे में. और इट वॉज ऑसम. सो आप कभी भी अगर नांदेड़ आते हैं तो आप ये गुरुद्वारा ज़रूर विज़िट करें, लंगर खाएं. वो प्रसाद है यहाँ का और मस्ट विज़िट प्लेस है ये. अगर आप यहाँ से कभी भी गुजरते हैं. ये अनप्लान्ड था, इट वॉज अनप्लान्ड स्टॉप बट वी रियली इन्जॉयड. वी क्रॉस्ड नांदेड़ एंड नाउ वी गॉट अ वेरी गुड रोड. सो यहाँ से जो रोड है ये अच्छी है एंड वी हैव अ 3-lane रोड. वी कैन मेंटेन अ गुड स्पीड लिमिट. बाकी बात करें तो नांदेड़ से 70 किलोमीटर्स पहले रोड ख़राब हो जाती है. मतलब उतनी अच्छी रोड नहीं है और वहाँ पे आपका एवरेज स्पीड गिर जाएगा. फिर आप नांदेड़ सिटी में भी इतने अच्छे रोड नहीं है, वहाँ भी थोड़े से ख़राब है. उनका भी आउटर रिंग रोड ख़राब है. एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ नांदेड़ एटलीस्ट 20-30 किलोमीटर्स के बाद यू गेट दिस रोड. इट्स अ वेरी गुड रोड.
यहाँ पे 3 लेन 6 लेन का रोड है, नेशनल हाईवे है. आई एम रनिंग ऑन माई ADAS 96 पे लॉक्ड है एंड इट्स वेरी गुड रूट. एंड फ्रॉम हियर वी हैव 420 किलोमीटर्स लेफ्ट. तो यहाँ से ओमकारेश्वर 420 किलोमीटर है एंड एस्टिमेटेड टाइम मॉर्निंग 10 AM का है. बट वी गोना रेस्ट. अब उसके बाद विल सी कि हम कब पहुँचेंगे. बट मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट है कि हम 12 बजे तक कल पहुँच जाएं. माई वाइफ इज स्लीपिंग, शी इज ऑलरेडी गॉन एंड सो वी क्रॉस्ड. Your vehicle is running on low fuel. Please refill. ओके, सो रिजर्व लग चुका है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पेट्रोल पंप. एंड हैदराबाद से यहाँ तक अभी तक वी हैव जस्ट पेड फॉर आउटर रिंग रोड के लिए हमने पे किया है. बाकी सारे टोल इज पेड वाया एनुअल पास. सो वी हैव टेकन द एनुअल पास. उसी से वी आर पेइंग एवरीथिंग. सो वी हैड अ नैप. अभी हम जस्ट 2-3 घंटा सो के उठा हूँ मैं. दिस इज आवर बेड इन 700. भाई इतना सुनसान रोड है ये. हाईवे में इतना मूवमेंट भी नहीं है. एंड यू कैन सी 8 डिग्री. सो कोल्ड आउटसाइड. नाउ इट्स 7 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग 7 डिग्री इन दिस ट्रिप. एंड वी रीच्ड वन ऑफ द टोल प्लाजा. इट्स टारोडा टोल प्लाजा. And our expected time is around 11:40. So हमने बहुत अच्छे से रात में कवर कर लिया है. अभी देखते हैं next 5 hours we will reach ओमकारेश्वर. and अब highway is good. बीच में हमें 50-60 किलोमीटर एक नॉर्मल हाईवे मिला था, सिंगल लेन था. कंडीशन वॉज गुड बट सिंगल लेन में रात में नाइट में ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो यू मे स्ट्रगल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन नाइट. अभी हम इंदौर से करीबन कुछ वही 200-300 किलोमीटर की दूरी पे हैं और वी जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट. और नाउ वी कैन सनराइज हो रहा है. लुक एट द व्यू. इट्स अ प्रीटी गुड हाईवे एंड हमें अभी और 5-6 घंटे लगेंगे ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए. और फिर वहाँ से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता है इंदौर. और फिर वहाँ से वी विल गो फॉर उज्जैन. अब हम थोड़ी देर में MP एंटर कर जाएंगे. हम ऑलमोस्ट MP महाराष्ट्र के बॉर्डर में हैं. एंड सन ऑलमोस्ट राइज होने को हो गया है और ये 6:40 का टाइम हो गया है. एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स और कुछ 250 किलोमीटर्स बाकी है. उसके बाद वी विल रीच ओमकारेश्वर. इट्स शोइंग 5 hours नाउ. आफ्टर 5 hours वी विल बी देयर. एंड रोड्स आर गुड. यहाँ पे रोड अच्छे हैं. फाइनली सनराइज हो गया अच्छे से. शी इज स्लीपिंग एंड एंजॉयिंग द व्यू. आई एम क्रूजिंग एट 96 in ADAS. So ADAS is working very good if the roads are good. So Mahindra is really done a great job in XV700. I'm still haven't faced any challenges in ADAS. It's work very good. अगर आप रोड अच्छे हैं सब अच्छा है तो it will work 100% properly. I've logged it at 95 पे लॉक है and it's managing everything properly. So अभी जैसे ट्रक है it will do the auto braking. You can see it's reducing the brake. I just have to give the indicator and change the lane. बस फिर इसके बाद it will again go to
96 जिस पे मैंने लॉक किया था। सो हाईवेज पे ADAS works good and it's needed. It's a must have functionality nowadays because roads are becoming good in India, and if you have a ADAS then it will really help you in many trips. We slept in our car for 3.5 hours. I kept it in the petrol pump. पेट्रोल पंप पे रोक के हमने 3-3.5 घंटे कुछ सोए। और 700 बड़ी गाड़ी होने का एक फ़ायदा है कि यू कैन स्ट्रेच वेरी वेल। आराम से फैल के हमने 3-3.5 घंटे सोए। शी इज़ स्टिल स्लीपिंग एंड आई स्टार्टेड एट 5 AM एंड नाउ इट्स अराउंड 7। सो 2-2.5 घंटे से आई एम ड्राइविंग। आई हैव कवर्ड अराउंड 100 किलोमीटर्स एंड अगेन 500 सो अभी और 5 घंटे की जर्नी बाकी है। उसके बाद वी विल रीच ओमकारेश्वर। सनराइज हो चुका है एंड roads are pretty good. We will enter MP soon. This is still Maharashtra, but the roads are very good in this route. बीच में कुछ 40-50 किलोमीटर्स है जहाँ पे roads are not great. Single lane national highway आता है वो। उसके बाद when you connect to this, it's again very good. So ये route भी अच्छा है। We are exploring and she is still sleeping. So I'm just looking for a tea. उसके बाद I'll again start. So I'm just looking for a tea shop. इस रूट में अभी तक कोई चाय वाला नहीं मिला है, तो एक बार कोई चाय वाला मिल जाए उसके बाद we will again continue to ओमकारेश्वर। क्या हो गया, सर्दी लग गया तुमको? ऑलमोस्ट यहाँ से 130-40 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता हमारे पास। That's it. उसके बाद पहुँच जाएंगे। तो हमने तो सोचा था कि नॉन स्टॉप 11 बजे तक पहुँचेंगे, बट 3 घंटा रेस्ट करके 11 बजे तक पहुँचना है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर किया रात में। रोड अच्छा ही है, एक्सपेक्टेड था कि ख़राब होगा, तो नया बना रहा है, नए रोड्स बना रहा है, अच्छे रोड बना रहा है। बाबा अकेले सोने के लिए ना ऐसे सोना है क्रॉस में। क्यों? अच्छा, तो क्रॉस में नहीं लगता, अकेले सो रहे तो क्रॉस में सोना है ऐसा। कैसा रहा एक्सपीरियंस पहला सोने का? ऐसा बहुत अच्छा था, है ना यार। केलों का पूरा बागान है यार। हाईवे तो अच्छा बना रहा है। केलों की फसल है पूरी। यही था डाइवर्जन, थोड़ा मोड़ा तो ऑफ राइडिंग हो जाएंगे। यहाँ पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पता नहीं और कितने किलोमीटर्स तक है। लास्ट 20-30 किलोमीटर से ऐसे ही है, डाइवर्जन्स एंड रोड खराब ही है। सो के हो गया तुम्हारा? नाश्ते के लिए रुका जाए अब कहीं। और केले मैं बोला ना, यहाँ पूरा केला ही केला होता है। इन लोगों ने देखो पूरी डिजाइनिंग में भी केला बना रखा है। यहाँ सबसे ज्यादा केला होता लगता है। केले का कोई डिश होना चाहिए ना यहाँ पे, जैसे केला भजिया हो गया, केले का कोई आइटम बना लिए हैं। यहाँ सिर्फ केला उगा रहे हैं और एक्सपोर्ट मार रहे हैं। ये नाम है। तो डीजल का हो गया 2-3 रुपए। हमने डला लिया था 91 पॉइंट समथिंग में महाराष्ट्र में, फिर एक जगह 90 भी आया था महाराष्ट्र में, 90.85, बट अभी एमपी घुसते ही 93 हो गया। तो डीजल एमपी में महंगा है। तो अभी तो हमने फुल करा लिया, तो हम सीधा राजस्थान में जाके डालेंगे। किला विला रहा होगा बाबा, यही शाहजहां का। शाहजहां था ना, शाहजहां बोला ना तुमने, ताजमहल बनाने वाला था ना यहाँ पे। हाँ तो शाहजहां ही तो था। बोलते यहाँ पे मिस्टीरियस ब्लैक ताजमहल भी है। ब्लैक ताजमहल कहाँ? बुरहानपुर में, एमपी में शाहजहां बना के गया क्या ब्लैक वाला भी? अरे भाई ये क्या नया आइटम है? चौक हो गया यहाँ पे। नो, ट्रक खराब हो गया है,
एक ही गाड़ी आ जा सकता है। सो हम अभी एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर हैं ओमकारेश्वर से, और हमें अभी कम से कम 2 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड बुरहानपुर, और अभी हम, हाँ बट रोड पूरे ख़राब है अभी एमपी में। आप महाराष्ट्र से जैसे ही एमपी घुसेंगे पूरे रोड ख़राब है, मतलब हर जगह मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से पूरा डाइवर्जन ख़राब है। और ये जो बुरहानपुर करके जो ये डिस्ट्रिक्ट आया था भाई साहब, इनके तो शहर के अंदर के रोड ख़राब है पूरे, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो भाई ये क्या हो गया। तो ये ट्रक का गेम हो चुका है यहाँ पे, इसका हिसाब हो गया है पहले ही। सो ये घाट जैसा सेक्शन है, यहाँ पे पूरा घाट है, ये नया फ्लाईओवर ये बना रहे हैं, फिर उसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। बट टिल द टाइम यहाँ हादसे होते रहेंगे, क्योंकि रोड बहुत डेंजर है और कंडीशन भी ख़राब है। बताओ ये क्या नया ऑफ राइडिंग करना है यहाँ पे। अच्छा मैं तो डर गया, मैं बोला अभी उसके ऊपर चढ़ना है क्या, वो ट्रक के पीछे। रोड यहाँ जा रहा है। सब बुरहानपुर आएंगे तो ये शाहजहाँ का एरिया रहा है एक टाइम पे, तो यहाँ पे तो दरगाह है यहाँ पे बहुत सारे, 2-3 तो मैंने भी देख लिए रास्ते पे। तो ये बुरहानपुर बेसिकली शाहजहाँ का एरिया रहा है, और यहाँ दरगाह बहुत है, लोग यहाँ पे मन्नत वन्नत मांगने आते हैं। कौन सा वाला दरगाह था बाबा, हकीम। तो यहाँ पे कोई हकीम वाला दरगाह है, मतलब हकीम वर्ड भी यहीं ईजाद हुआ है। हिस्ट्री में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और बाद में मराठाओं ने भी कैप्चर किया है। और ये कोई एक पहाड़ है जिसके ऊपर बेचा रहा है, यही किला है उस टाइम पे। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि ये कोई किला ही रहा है ऊपर। एंड हाँ फोर्ट ही है बाबा, ये कोई फोर्ट है। अगर देखोगे तो वहाँ पे पिलर्स दिख रहे हैं फोर्ट के, वहाँ पे पिलर्स हैं। तो पूरा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ये पहाड़ का पिलर फोर्ट के जैसा किया गया है। तो ये कोई बहरनपुर का किसी टाइम पे फोर्ट रहा है। ये रानी लक्ष्मीबाई है, और ये बहुत बेहतरीन सा किला है ये पहाड़ के ऊपर। मेरे को लगता है इसका रास्ता वास्ता होगा बाबा कहीं से घूमने जाने देखने के लिए। इसको कुछ कहते हैं असीरगढ़। तो ये असीरगढ़ का किला है, ये करीबन 8-10 किलोमीटर पहले से दिख रहा था, तो मुझे लगा बुरहानपुर का ही कोई हिस्सा है, बट ये हाँ अजीरगढ़ का किला है ये। यहाँ भी रोड खराब है। तो ये हमारा बेड सेटअप था। एक 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। रोड अच्छा हो चुका है, 125 की स्पीड में लडास लगा के क्रूज कर रहे हैं, दोनों हाथ फ्री हैं, नए हिसाब से चल रहा है। 16 का माइलेज दे रहा है हाईवे पे, डीजल ऑटोमेटिक, 16 का एवरेज थ्रू आउट द जर्नी, बहुत अच्छा। कुछ भी बोल देते जो मन में है। चलो होटल में चेक इन करते हैं। चलें सीधा होटल में चेक इन करेंगे और ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। So now we reached our hotel, Hotel Royal Inn.